Hello everyone, hope you all are doing well, and today we are going to discuss all the lift pH calculation, lift conditions and module problems for the pH calculation. Okay, today especially we will be dealing with weak acids and combination of weak acids and the polyprotic acids, polyprotic weak acids. Okay, because diprotic acids we have discussed, diprotic strong acid we have discussed. The questions are very simple. Questions will be asked even the weak acid, mono basic or monoprotic weak acids, they will be asking. Okay, so they're very rare that they will be asking the mixtures. Okay, anyway, we will be discussing all those things, and please make sure that you do enough problems to do the problems in exams. Okay, now first of all, this is the particle basic problem of this is ammonium hydroxide, and this is very weak base. You can see from the Kb value, Kb is very less, and this is the ionization constant, and the ionization constant is very less. It means that the ionization of this particular base is happening very less manner. And after that, if you see this ionization alpha value also given 40%, alpha value is given for 40%. So you have to find the pH. How can you do that? Let me see. We have ammonium hydroxide, write this reaction ammonium hydroxide. Okay, so this ammonium hydroxide is partially dissociating and giving you ammonium ion in aqueous medium and hydroxide ion. Okay, hydroxide ion, this is aqueous, and the normal procedure which we are writing is C1 minus alpha, C alpha and C alpha. Okay, so this is what we have been writing. What exactly we have to find? This hydroxide of concentration we have to find it out. Okay, and how to find that? Do we have given alpha value? Yes, 40% ionized means alpha is given as 0.4. So somehow alpha is already given, no need to calculate. So for that we have to find the C alpha. What is the C alpha? C alpha is equal to, what is C? C is given 0.1. So 10 to the power minus 1 multiply with 4 into 10 to the power minus 1. So what is this? So this is coming to be 4 into 10 to the power minus 2. This is the concentration of OH ion. Okay, so what we can find? We can find pH. We can find pOH. pOH is negative log of OH ion concentration. Okay, so negative log of 4 into 10 to the power minus 2. Okay, so can you find it out? This is 10 to the power minus 2, so this is coming to be 2 minus log of 4. So this is log of 4, and this is particular value is 0.6. So you are getting 1.4. So this is pOH. We have to find pH. So pH plus pOH is equal to pKw, and that is equal to 14 at 25 degrees centigrade. So we have to find pH. So this pH is equal to 14 minus pOH. Okay, and what is 14 minus what is value? 1.4. So this is coming to be how much? 12.6. So 12.6. Okay, so this is happening to be very weak base because pOH uh, uh, so pH, this pH is coming to 12.6. Okay, fine. So this is what, how to calculate pH of the different acids base. No need on, see, Kb is given, so it does not mean that you have to go and apply Kb things. It does not require. Just see it what exactly is happening. I told you in beginning itself. First read the questions carefully, whether the information given is required or not. Kb is not required. Kb is here not required. Okay, so you can solve it like this only. Yes. Okay, after that, now let's talk about mixture of strong acid and weak base. So we are going to calculate the pH of mixture. pH of mixture pH of mixture of strong acid and weak acid. Strong and weak acid. Okay, so let's take any example of let's take some cs3
CO, acetic acid being the weak acid, plus strong acid is HCl. Okay, so let's take 0.1 mole CH3 COH and 0.1 mole HCl is given, and you know Ka is equal to 1.8 into 10 to the power minus, can anyone tell me 10 to the power minus 5 is for for acetic acid. Okay, so this is what we have been given, that you have one weak acid is given and another is strong acid, HCl. HCl being the strong acid, HCl being strong acid, what will happen? It will almost dissociate completely and it will ionize as H plus and chloride ion. This is the normal procedure you have been writing. Since this is 0.1 है, so it will be 0.1 and 0.1. ठीक है क्या? This will be 0.1 and 0.1. Now let's write this CH3COH, CH3COOH. Okay, being aqueous in medium, reversible reaction. Since being the weak base, it can go and it can undergo reversible reaction and giving you CH3COO negative aqueous plus H plus N. Okay, aqueous. H plus N, and norm, you know, this common ion effect will be happening. So this is C into 1 minus alpha, and this is C alpha, and this is C alpha. This is the alpha after common ion effect we are considering. So the total H plus what will be happening here? 0.1. Huh? Okay. Also, Kb is 1.8 into 10 to the power minus 5, and our normal procedure was finding alpha. Alpha is equal to under root of Ka by what? Concentration C. So Ka is 1.8 into 10 to the power minus 5 divided by 0.1. So what exactly we were getting? 0.0134, something like this. This particular value is less than 0.05. So yes, we can neglect alpha here, huh? Okay, अल्फा हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू फाइंड पीएच. सो समहाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल H plus concentration. So total H plus concentration at equilibrium is C alpha plus 0.1. What is C? What is C? C is 0.1. So 0.1 into 0.0134 plus 0.1. What exactly I was telling you, that compared to this 0.1, this value can be neglected. Okay, this value can be neglected. So if you are neglecting this particular value, so what exactly, this is approximately 0.1 only, and pH what you are getting? pH is getting 1. Okay, so negative log of 0.1 is 1. Okay, so now what is happening, please understand it here, that if you have strong acid and weak base, sorry, strong acid and weak acid, so exactly happening that you are taking just pH of this particular thing. ठीक है, क्यों ऐसा ले रहे हैं? क्योंकि आपका जो अल्फा वैल्यू फॉर दिस पार्टिकुलर एसिटिक एसिड इज वेरी लेस, एंड इफ यू आर पुटिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द अल्फा वैल्यू अगेन बिकमिंग लेस. क्लियर? सो अल्फा वैल्यू क्या है, और आपका कम हो जा रहा है. क्योंकि अगर आपको यहाँ पे अल्फा निकालना है, सो अगर यू नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व, बट व्हाट वी नो दैट दिस अल्फा इज वेरी लेस, सो यू कैन नेग्लेक्ट इट. सो इफ यू नेग्लेक्ट इट, दैट्स फाइन, यू कैन फाइंड आउट दैट पीएच इज अप्रोक्सीमेटली 1. ठीक है, 1 से हल्का सा कम होगा, एकदम हल्का सा कम होगा. सो यू कैन टेक इट, यू कैन टेक द सिंपल रिस्क एंड यू कैन टेल दैट या pH is equal to 1. Why we have taken this particular alpha neglection? Because we know that this concentration of H plus ion is 0.1, and this is sufficient to give me that particular information कि अल्फा आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अल्फा आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अब क्या है कि अब हम बात करते हैं वेरी 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 डाइल्यूट वीक एसिड. अगर आप बात करें वेरी वेरी डाइल्यूट वीक एसिड, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. हाँ, तो आपको क्या बताना है, वेरी डाइल्यूट वीक एसिड की बात हम करेंगे. बिफोर दैट, अगर हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की बात की है, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड वीक एसिड की भी बात कर ही लेते हैं. मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड. ओके, सो
pH of mixture of weak acids. Okay, weak acids and weak acids. So let's take what? Na acid Ha1. Na acid Ha1. Ha1 is a monoprotic weak acid. कोई एक acid है. So this is partially dissociating and giving you H plus ion, A negative ion and H plus ion. Aqueous medium. Aqueous medium. A1. Aqueous medium. Okay. Now you have some other acid. Let's take Ha2. Weak acid and weak acid. Some other weak acid. We are talking about only weak acids. So this is again partially dissociate and giving you A2 aqueous medium negative plus H plus ion aqueous. ओके तो आप क्या करना है, आप क्या कर सकते हो? लेट्स टेक K1. K1 be the ionization constant for acid 1. Let's write Ka1. Okay, Ka1 is the ionization constant for this particular acid 1 and alpha 1 be the degree of ionization. Similarly, let's take Ka2 be the degree of ionization for this particular acid, weak acid 2, and alpha 2 be the degree of ionization for acid 2. Now what exactly writing? Same normal procedure, C into 1 minus alpha 1. Again this is C1, concentration of acid 1. So this will be give you C1 alpha 1, C1 alpha 1. ठीक है, ये लिख सकते हैं क्या? उसके बाद है दिस इज C2 into 1 minus alpha 2. So this is C2 alpha 2 and this is C2 alpha 2. Very simple. ओके सो ये लिख सकने के बाद क्या पता है आपको कि एट पार्टिकुलर टाइम, उस समय पे जब रिएक्शन कंप्लीट हो रखा होगा, इक्विलिब्रियम पहुंच गया होगा, इन दिस पार्टिकुलर वेसल टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल बी इक्वल टू C1 alpha 1 plus C2 alpha 2. So at part for both reaction, what is the total number of H plus ion or total concentration of ion? C1 alpha 1 plus C2 alpha 2. C1 alpha 1 plus C2 alpha 2. This is the total concentration of H plus ion. So if you want to find out pH, if you want to calculate pH, if you want to calculate, what you should know? You should know H plus ion concentration, and this is the total H plus ion concentration. That's C1 alpha 1 plus C2 alpha 2. Very simple. You can find this and you can get the answer. Now if alpha is given, then that is very easy for you to calculate it. But if alpha is not given, then there is a problem. We have to do some mathematical practice here. Let's do that. क्या करना है बताएंगे क्या? For this particular reaction, let's write it. मैं थोड़ा अब करके हटा दूँ सबको. थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप लोग को भय लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भय को ख़त्म किया जाए अब. ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से डरना नहीं है हमें. सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, और आपको पता ही है कि आपके पास नेग्लेक्शन करने की पावर है और वो आपको हेल्प करता है बहुत ही आसानी से. ठीक है, तो सारे कैलकुलेशन को आसान बना देता है. और चिंता मत कीजिए, आपकी नीट के प्रॉब्लम में ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे. वो नहीं चाहता कि आप भी मैथमेटिक्स के बड़े विद्वान बन जाएं और यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ऐसा नहीं है, विद्वान बनिए, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी बात है. पर क्या है कि अभी जो हमारा एम है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे. ठीक है, एम क्या है हमारा कि किसी तरीके से अगर ये अल्फा 1 अल्फा 2 निकल के आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. हमको H प्लस आयन मिल सकता है और हम उसके बाद हम नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन लेके पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन 1 के लिए क्या लिख सकते हैं? Ka1, करेक्ट. Ka1 क्या हो जाएगा थोड़ा सा बताएंगे हमें. Ka1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca1, सॉरी, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha1. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज दिस वैल्यू इज C1 alpha 1 multiply with C1 alpha 1 plus C2 alpha 2.
ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1। सिमिलरली अगर आप Ka2 लिखना पसंद करोगे क्या होगा बताइए, Ka2 रिएक्शन नंबर 2 में लिखते हैं। Ka2 क्या होगा, Ka2 लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, दिस इज A2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA2। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा वैल्यू लिखते हैं, क्या होगा बताएंगे क्या, C2 अल्फा 2, सो C2 अल्फा 2 मल्टीप्लाई विथ दिस वैल्यू C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। प्लीज़ मैम आप मेक श्योर करेंगे कि आप जो स्टेप है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चिंता मत कीजिए, कोई डेरिवेशन पूछ नहीं रहा है, बट एग्जैक्टली जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा ये तो पता होना ही चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ चलिए, सो इसको इस पार्टिकुलर को फिर से लिखा जाए कि A1 इज इक्वल टू, अब मैंने बताया ना कि आपको नेग्लेक्शन की पावर दी गई है तो उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या माना जा रहा है कि अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 वो क्या है, बहुत 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 छोटा है। क्यों, हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं, वीक एसिड की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो वीक एसिड का जो अल्फा होता है, डायरेक्ट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सारी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है, जो हमें पता है ये एसिटिक एसिड की पता की थे काफ़ी कम आती थी। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, अल्फा की जो वैल्यू आती है वो काफ़ी कम आती है। सो यस वी कैन नेग्लेक्ट इट। अगर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो तो बताओ क्या कर पाओगी, 1 माइनस अल्फा 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा 1 क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 2 क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो हम क्या करें, बेसिक नेग्लेक्शन कर रहे हैं अल्फा को, ठीक है ओके। सो अगर हम नेग्लेक्ट करें तो फिर वैल्यूज़ को लिखते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, C से C कैंसिल, C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज कमिंग टू बी अल्फा 1 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। What is Ka2? Ka2 is alpha 2 into alpha 2, C2 से C2 कैंसिल हुआ, सो C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ओके ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, Ka1 डिवाइड बाई Ka2 हो जाएगा आपका कट्टम कुट्टी, ये बंदा गया, सो अल्फा 1 बाई अल्फ़ा 2। या आप अगर किसी अल्फ़ा 1 को लिखना चाहते हो तो अल्फ़ा 1 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 मल्टीप्लाई विथ Ka1 बाई Ka2। ठीक है, सो अभी भी क्या है, एग्जैक्टली अल्फ़ा की वैल्यू हमें इस समय मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब कि अपने अल्फ़ा 2 तो आ ही गया, इसमें अल्फ़ा 1 के लिए अल्फ़ा 2 चाहिए, अल्फ़ा 2 के लिए अल्फ़ा 1 चाहिए। ऐसा क्या करें किसी ये अल्फ़ा बीच में ना आए। ओके, अगर आपको वो करना है तो क्या करते हैं, दिस अल्फ़ा 1 की वैल्यू को उठा के इसमें डालते हैं। क्या है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू को इस वैल्यू को उठा के ये जो वैल्यू है अल्फ़ा 1 की जो वैल्यू आई है उसको उठा के आप कोशिश कीजिए यहाँ डालने का। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। Ka1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 ना, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 Ka1 बाई Ka2। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है सर, ये क्या ही कर रहे हो आप, इतना मैथमेटिक्स थोड़े ही पढ़ना है हमको, पर प्लीज़ आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। ठीक है, सो Ka1 बाई पुटिंग व्हाट, C1 अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 1 की जगह पे हम डाल रहे हैं ये वैल्यू, सो C1 अल्फ़ा 2 Ka2 बाई Ka1 बाई Ka2 प्लस क्या है C2 अल्फ़ा 2। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं तो क्या है, अल्फ़ा 2 आ गया, Ka1 से Ka1 गया, सो अल्फ़ा 2 बाई Ka2 आ रहा है। और थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं तो क्या आएगा बताएंगे, C1 अल्फ़ा 2 Ka2, सॉरी दिस इज Ka1 ना, सो C1 को बाहर निकालें, नहीं निकलेगा, अल्फ़ा 2 बाहर निकलेगा, करेक्ट। सो अल्फ़ा 2 स्क्वायर आ गया, मैंने यहाँ से अल्फ़ा 2 और यहाँ से अल्फ़ा 2 को बाहर निकाल लिया है। तो क्या होगा, C1 Ka1 बाय Ka2, तो आपने एलसीएम लिया तो Ka2 ही रहेगा, एंड C2 अल्फ़ा 2, ठीक है, एंड सॉरी अल्फ़ा 2 को तो बाहर निकाला, C2 Ka2। क्या ये आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है क्या, हमने एग्जैक्टली क्या किया, इस अल्फ़ा 1 को पुट कर दिया इसमें। तो जब हमने अल्फ़ा को पुट किया तो क्या है, ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, और ये एक्सप्रेशन जब निकल के दिस इज इक्वल टू 1, करेक्ट। ठीक है, ये 1 ही है ना, हाँ 1 ही है, ठीक है,
नहीं 1 है क्या, सॉरी, रियली सॉरी। करेक्ट, क्या ये 1 ही है? हाँ करेक्ट 1 है। चलिए आगे करते हैं। सो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताएंगे, अल्फा स्क्वायर बाई ये KA2 को भी बाहर निकालिए, KA2 स्क्वायर इस ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बताइए, C1 KA1 प्लस C2 KA2, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट, KA2 स्क्वायर। सो अब क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू लिखना हो तो कैसे लिखोगे बताओ? अल्फ़ा की वैल्यू लिखना हो तो ये बंदा यहाँ चला जाएगा। सो क्या हो जाएगा, KA2 स्क्वायर, दिस इज अल्फ़ा 2, करेक्ट, अल्फ़ा 2। सो KA2 स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, C1 KA1 प्लस C2 KA2। सो दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर, दिस इज अल्फ़ा 2 स्क्वायर। सो अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ऑल द होल थिंग। सो यू विल गेटिंग KA2 बाई अंडर रूट ऑफ C1 KA1 प्लस C2 KA2। सिमिलरली अगर यही वैल्यू आप उठा के अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, कहीं भी पुट कर लो, यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करो, अल्फ़ा 2 की वैल्यू, तो अल्फ़ा 1 आ जाएगा आपका, अल्फ़ा 1 आ जाएगा KA1 बाई अंडर रूट ऑफ C1 KA1 प्लस C2 KA2, ठीक है। सो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आ गया। अब क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आ गया। मेन हमारा मुद्दा क्या होता है, मुद्दा होता है हमारा किसी तरीके से ये इस वैल्यू को निकालना, यानी कि C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 को निकालना। तो अगर हमको वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको H प्लस आयन निकालना है, सो दैट इज इक्वल टू C1 अल्फ़ा 1, सो C1 इंटू KA1 बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ C1 KA1 प्लस C2 KA2 प्लस C2 अल्फ़ा 2, सो अल्फ़ा 2 इज KA2 बाई अंडर रूट ऑफ C1 KA1 प्लस C2 KA2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को एक साथ, ये दोनों तो सेम ही है, बराबर हटा लेते हैं। सो यू आर गेटिंग C1 KA1 प्लस C2 KA2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, C1 KA1 प्लस C2 KA2। और आपको मैथमेटिक्स थोड़ा अगर पता हो तो नीचे में रूट में भी वही चीज़ है, ऊपर में यही A/√A, करेक्ट, A/√A का बात आ रहा है। सो टोटल इज इक्वल टू √A। सो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज कमिंग टू बी अंडर रूट ऑफ C1 KA1 प्लस C2 KA2। और अगर गलती से ये बोला गया कि C1 इज इक्वल टू C2 तो क्या होगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KA1 प्लस KA, क्या हो गया, अगर दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो क्या हो जाएगा, KA1 प्लस KA2 मल्टीप्लाई विथ सम C। ओके, सो ये जो चीज़ है आपको पूरा डेरिवेशन अगर पता नहीं हो तो भी चलेगा, पर ये एग्जैक्टली क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, अल्फ़ा पता होना, नहीं पता होना से मतलब नहीं है। अगर आपको दोनों एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पता है और दोनों एसिड का K वैल्यू यानी कि ऐसा आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट पता है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। कैसे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, C1 इंटू KA1 प्लस C2 इंटू K2 और टू द पावर 1/2 और अंडर रूट ऑफ C1 KA1 प्लस C2 KA2, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या, जी हाँ, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा हो गया, पर ये इंपॉर्टेंट भी है कि कभी कभी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि दो वीक एसिड है और दोनों वीक एसिड को डाला गया है, दोनों की KA वैल्यू गिवन होगी, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, आपसे H यानी कि pH पूछा जाएगा। तो जैसे ही आपको H प्लस मिल गया तो नेगेटिव लॉग लगाइए, आंसर पाइए, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन का है, डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये कि दिस H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ C1 KA1 प्लस C2 KA2। तो अगर आप लोग को बहुत सारे मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप फॉर्मूला याद करो, अगर आपको ये आइडिया आ गया है तो ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। एनीवे आपको तो याद करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा दिस इज एनीवे भाई, क्वेश्चन जो आप पूछा गया है वेरी 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 लेस अमाउंट ना, क्वेश्चन बहुत कम अमाउंट में पूछा जाता है इसका। कभी कभी आपसे जैसे उनका दिमाग फिर गया तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ऐसे परिस्थिति के लिए आपको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है, हमने देखा है जब टू वीक एसिड्स को मिलाया जाता है तो क्या होता है, जब टू वीक एसिड्स को मिलाने पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, जब ये हो गया, अब मान लीजिए कि वेरी डाइल्यूट एसिड है, वेरी डाइल्यूट वीक एसिड है,
तो उसका हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, उनका पीएच कैसे निकालेंगे। देखिए जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं पीएच निकालने का काम कर रहे हैं, हमारा मेन एम क्या है, किसी तरीके से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना। अगर आपने H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया तो वेरी इजी, अगर आज में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बट आराम से अब जो है सो आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा काम क्या होगा, किसी तरीके से हम H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। चलिए अगला क्या है, हम लोग वेरी डाइल्यूट वीक एसिड की बात करने जा रहे हैं। Okay, so we will be discussing very dilute weak acids, डाइल्यूट वीक एसिड्स। हाँ, डाइल्यूट वीक एसिड की बात करेंगे। अभी तक हमने कॉन्सेंट्रेशन देखा था, CH3 का 0.1 था, एसिटिक 0.1 0.2 मोलर ऐसे हुआ करता था। ओके, सो अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट वीक एसिड, डाइल्यूट वीक एसिड्स, weak acids। ओके, सो डाइल्यूट वीक एसिड है। लेट्स टेक सिंपल रिएक्शन। मान लीजिए कि 10 टू द पावर, डाइल्यूट की बात करें, 10 टू द पावर 6 मोलार CH3COH। डाइल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेशन वेरी 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 लेस। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे कि क्यों आखिर इस चीज़ को अलग से पढ़ना पड़ रहा है। And you know K value will be, KB value will be, KB is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5। वेरी सिंपल। ओके, नाउ क्या है, थोड़ा सा इसको ही लिखते हैं, प्रोसेस करते हैं। क्या होगा बताएंगे क्या, CH3COH गिविंग यू क्या होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस क्या H+ है। ओके, नॉर्मल प्रोसीजर C अल्फा, सॉरी 1 minus alpha C alpha। सो क्या होता है, KI इज इक्वल टू और KA इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू C इंटू 1 माइनस अल्फा। एंड वाट वी नेगलेक्ट क्या करते हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसीजर तो वही मैं कर रहा हूँ। तो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बाय C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा होता है। एंड वी नेगलेक्ट इट, सो दिस इज कमिंग टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा इज कमिंग टू बी, ये इधर चला जाएगा, सो आप इसको 10 टू द पावर माइनस 6 भी लिख सकते हो। सो अल्फा इज इक्वल टू √18 और अप्रॉक्सीमेटली 4 जा 16 होता है, सो 4/2 लिख लेते हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अगर आपको केमिस्ट्री की थोड़ी सी फिक्र हो तो देखोगे कि भैया अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, कैसे अल्फ़ा की वैल्यू 4 कैसे हो सकती है, अल्फ़ा वेरीज फ्रॉम 0 to 1। हाँ, 400% डिसोसिएट कैसे हो सकता है, एक मॉलिक्यूल अपने 4 गुना में कैसे बदल सकता है, एक CH3COH 4 H+ कैसे दे सकता है, ठीक है। तो क्या है कि जो अप्रॉक्सीमेशन हमने लिया है कि 1 माइनस अल्फ़ा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, यानी कि गलत है, कहीं ना कहीं गलत किया है हमने, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब डाइल्यूट एसिटिक एसिड होते हैं तो आप जो है क्या कर सकते हो, आप जो है ये नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते हो, ये प्रोसेस नहीं कर सकते हो, यानी कि आप नेग्लेक्शन नहीं कर सकते हो। जो नेग्लेक्ट करने का काम आता है 0.1 मोलार 0.2 मोलार में हो सकता है। जैसे ही 0.3 मोलार की 10 टू द पावर माइनस 6 मोलार के बाद की बात करते हैं, उस वक्त क्या आएगा, देखिए ना 10 टू पावर माइनस 6, जैसे ही हमने 10 टू द पावर माइनस 6 मोल लिया, देख रहे हो आप क्या आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपके पास डाइल्यूट वीक एसिड्स होते हैं तो आप क्या हो, ये नेगलेक्ट वाला काम नहीं करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल प्रोसीजर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ, ये यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद जो है आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स लिख देता हूँ, सॉल्व तो आप खुद ही कर लोगे, कैसे होगा। दिस इज़ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, करेक्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर, बताइए, करेक्ट, सॉरी रियल दिस अल्फ़ा। So 10 to the power minus 6 alpha square
then it will come here, so you will plus 1.8 into 10 to the power minus 6, ठीक है, अल्फा minus 1.8 into 10 to the power minus 6 is equal to 0. This is the quadratic equation, and let's write the solution for this. Alpha is equal to minus b. Minus b is minus 1.8 into 10 to the power minus 6 अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा b स्क्वायर. सो क्या होगा b स्क्वायर 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4ac. सो माइनस माइनस प्लस हो गया. सो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई विथ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ओके, डिवाइडेड बाई 2a. सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ओके, सो इस तरीके से क्या है, थोड़ा सा डर लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के आपको कि भैया ऐसे कैसे होगा. तो ठीक है, डर लग ही रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. बेसिक सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए. ठीक है, तो मैंने कहा बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली मैं कि जब आपके पास डाइल्यूट वीक एसिड्स होता है तो ये जो है अल्फ़ा को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए, इसका उदाहरण आपको मिल गया कि अल्फ़ा जो वैल्यू आती है वो क्या है 1 से ज़्यादा कैसे आ सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है. गलती कहाँ की है, हमने नेगलेक्ट कर दिया था अल्फ़ा को. तो कहाँ पे अल्फ़ा नेगलेक्ट नहीं होगा, जब आपके पास डाइल्यूट वीक एसिड्स होते हैं. ठीक है, जब डाइल्यूट वीक एसिड्स होते हैं तो हम अल्फ़ा को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्या ये सारी बातें समझ में आई सबको, समझ लीजिए इसको. ठीक है, अब मान लीजिए कि और ज़्यादा डाइल्यूट आपने क्या किया, वेरी डाइल्यूट कर दिया. वेरी डाइल्यूट का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 से आप समय 7 चले गए, 8 चले गए. सो 10 टू द पावर लेट्स टॉक अबाउट 10 टू द पावर मान लीजिए कि 10 टू द पावर माइनस 8 मोलार CH3COH की बात करते हैं. ठीक है, हमने अभी डाइल्यूट की बात की है और वेरी डाइल्यूट का. बोलोगे सर ये क्या ही बता रहे हो आप, बार बार कभी डाइल्यूट बताते हो कभी नॉर्मल बताते हो, सब में क्या क्या लग रहा है. तो जब आप वेरी डाइल्यूट एसिटिक एसिड या वेरी डाइल्यूट वीक एसिड की बात कर रहे हो, वेरी डाइल्यूट वीक एसिड जब इसकी बात करते हैं, सो एग्जाम्पल इज लेट्स टेक 10 टू द पावर माइनस 8 मोलार CH3COH. ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है. ये आपके किसी भी वीक एसिड को निकालने से बड़ा ही आसान तरीका है. इसमें क्या आसान तरीका है बताइए. याद है 10 टू द पावर माइनस 8 मोलार HCl कैसे निकाले थे, करेक्ट, वही ये तरीका है निकालने का. क्यों, क्योंकि ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ ने क्या बताया था कि जब आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाते हो तो वो बिहेव करने लगता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में. दिस CH3COH बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब आप इसको इतना डाइल्यूट कर दिए हो कि अब इस पार्टिकुलर पोजीशन पे आके दिस इज कॉल्ड, नाउ दिस कैन बी रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, 10 टू द पावर माइनस 8 मोलार HCl भी बोल सकते हो. ठीक है, क्यों, क्योंकि अब क्या है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया है. तो क्या है कि CH3COOH, ठीक है, सो दिस इज CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस एंड दिस इज C इंटू 1 माइनस अल्फा. अल्फा इज क्या हो गया बताइए, अल्फा बहुत ज़्यादा हो गया है. सो यू आर गेटिंग C अल्फा, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 मोलार. क्या हो गया है, वो सारा का सारा आपका CH3COH बदल गया है आपके एसीटेट आयन एंड H प्लस आयन में. तो अब क्या है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीधा इसको ले सकते हो आप. कैलकुलेशन pH यानी H प्लस आयन कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है ना आपको, क्या होगा C अल्फा यानी कि दिस इज 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7. ये मतलब वाटर वाला याद है ना आपको, वाटर वाला करते हैं. तो क्या आ जाएगा बताइए, 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 pH प्लीज. pH इज कमिंग टू बी pH इज कितना आएगा बताएंगे, 8 माइनस लॉग ऑफ 1.1, करेक्ट. सो दिस इज 8 माइनस लॉग ऑफ 1.1, सो 8 माइनस 1.02 समथिंग. सो दिस इज कमिंग टू बी 6.98 और समथिंग. ओके, सो pH क्या है 6.9. मेन मुद्दा क्या है बताने का यहाँ पे कि जब आप और ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हो, जब देखिए जब हम 0.1 मोलार एसिटिक एसिड 0.2 मोलार एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो वहाँ पे अल्फ़ा को नेगलेक्ट करते हैं. फिर जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिटिक एसिड को तो वहाँ पे अल्फ़ा को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. और फिर जब हम और ज़्यादा डाइल्यूट यानी कि वेरी डाइल्यूट कर देते हैं तो अब अल्फ़ा का काम ही नहीं होता है. सारा का सारा क्या है आपका, सारा का सारा अल्फ़ा है वो 1 में बदल गया है.
अल्फा किस में बदल गया है, 1 में बदल गया है। तो क्या हो रहा है कि सारा का सारा जो आपका एसिटिक एसिड होगा वो डिसोसिएट करके आयोनाइज बना देगा, आयोनाइज होके H+ आयन बना देगा। और वो H+ आयन क्या है, आप जैसे HCl में लिखा करते थे वैसे यहाँ पे लिखोगे। और सिंस अब वाटर लेना पड़ता है क्योंकि दिस कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस, तो H+ आपको जो वाटर से आएगा उसको भी एकोमोडेट करना पड़ता है। वो तो ये पुरानी बात है, पर मुद्दे की बात ये है कि ये 10⁻⁻8 सीधा आ जा रहा है, ये कम नहीं होगा। अल्फ़ा की बातें यहाँ पे नहीं करें, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कीजिए आप थोड़ा सा कि आखिर क्या है ये जो बंदा बन गया है, ये जो आखिर क्या हुआ इसमें, एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट कर रहा है। यही मुद्दे की बात थी। चलिए इसे जल्दी से आप नोट कीजिए। अब बात करेंगे हम क्या, पॉलीप्रोटिक एसिड्स। किसकी, पॉलीप्रोटिक एसिड्स की। आज जो है पूरा पीएच ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। पीएच की बातें आज ख़त्म ही हो जाएंगी। तो आज बात करेंगे, अभी बात करते हैं पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स। पॉलीप्रोटिक डाइप्रोटिक की बात हमने की थी, अगर याद हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जब बात कर रहे थे तो हमने डाइप्रोटिक एसिड्स की बात करी। तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता है, अल्फा होता है, काम तुरंत निकल जाता है। अल्फ़ा नहीं होता ना वहाँ पे, काम तुरंत निकल जाता है। अल्फ़ा तो 1 होता है। हम ऐसा बोलते हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं हमारे वो क्या हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। सो अब बात करने जा रहे हैं हम किसकी, बात करने जा रहे हैं हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स की। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, सो पॉलीप्रोटिक एसिड्स आपके पास, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स, सिमिलरली पॉलीप्रोटिक वीक बेसिस। जो हम एसिड के लिए पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, वो आपके बेस के लिए भी ट्रू होता है। उसी तरीके से बेस का निकालते हैं। C1 - अल्फा, C अल्फा इज फॉर ट्रू। हमने हमेशा किसके लिए, एसिड के लिए क्या है, दिस इज ट्रू फॉर योर वीक बेस। ओके, तो जो आप एसिड के लिए अप्लाई करते हो सेम उसी तरीके से बेस के लिए अप्लाई करेंगे। सिंस यहाँ पे आप H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो, वहाँ पे OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन निकलता है, तो आप POH निकालिए और 14 में से घटा दीजिए, pH निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, अब बताइए पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स कौन कौन से हैं आपके पास। ऑक्सैलिक एसिड्स, राइट, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4। सिमिलरली ये क्यों है ये पॉलीप्रोटिक, दिस इज द डाइप्रोटिक एसिड। क्यों डाइप्रोटिक, क्योंकि इसके पास 2 H+ आयन हैं, दो रिप्लेसेबल H+ आयन हैं। तो क्या होगा, एक बार ये H2C2O4 से बनाएगा आपका HC2O4 नेगेटिव, और फिर बनाएगा आपका C2O4 2-। तो एक बार एक H+ लूज करेगा, एक बार फिर एक और H+ लूज करेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि डाइप्रोटिक वीक एसिड। ये एक वीक एसिड है और इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं। सिमिलरली दूसरा क्या है, H3PO4 का तो नाम सुना ही होगा। सो दिस इज H3PO4, दिस इज ट्राइप्रोटिक एसिड्स। तो क्या है, क्या इसका रिएक्शन लिखना चाहो तो कैसे लिखेगा, H3PO4 जब एक बार रिएक्शन करेगा तो पार्शियली आयोनाइज करके क्या बनाएगा, H2PO4 नेगेटिव एक्वस मीडियम प्लस H+ आयन। सिमिलरली जब एक और बार करेगा तो क्या होगा, ये H2PO4 एक्वस मीडियम में जाके क्या बनाएगा, HPO4 नेगेटिव प्लस H+ आयन। अब ये बंदा भी फिर से एक बार और आयोनाइज हो जाएगा और बनाएगा HPO4 माइनस, सॉरी दिस इज -2, करेक्ट, -3 एंड H+ आयन। सो ये 3 बार तीन H+ देता है सॉल्यूशन में, दैट्स व्हाई दिस इज ट्राइप्रोटिक एसिड। ये बंदा जैसे H2CO4 है, तो ये क्या करता है, आयोनाइज करता है, गिविंग यू HC2O4 -1 एक्वस मीडियम में प्लस H+ आयन। और ये एक और बार क्या करेगा कि C2O4 -2 ये बता रहा है गिविंग C2O4 -2 प्लस H+। ठीक, तो अब देखिए सारे के सारे एक्वस हैं। ओके, अब क्या है, इसके K वैल्यू गिवन होती है, इसके डिफरेंट, इसके मल्टीपल K वैल्यू होती है। K वैल्यू कैसे, मल्टीपल रिएक्शन तो मल्टीपल K वैल्यू। तो पहला रिएक्शन है, सो दिस इज कॉल्ड Ka1। दूसरा रिएक्शन है तो दिस इज कॉल्ड Ka2।
सिमिलरली इसके पास 3 रिएक्शंस हैं, तो दिस इज कॉल्ड Ka1, Ka2 एंड Ka3। ओके, सो ये डिफरेंट हैं, इसके की वैल्यू, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसके अलग अलग हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे चीज़ों, इसको अगर आप बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट होने वाला है। तो इसको क्या करते हैं, बहुत ही आसान करते हैं। क्या है, आसान करते हैं। और चीज़ें ऐसी होती है, क्या होती है कि इसके जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हैं, हमारे पास देखिए मल्टीपल आयोनाइजेशन कांस्टेंट मिल रहे हैं। तो जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होते हैं इनकी, वो क्या होते हैं, क्या होता है, पहला जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन Ka1 फॉर दिस वन इज ग्रेटर देन Ka2। जो पहला आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, दूसरे आयोनाइजेशन कांस्टेंट से बहुत ज़्यादा होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ वेरी हाई। यानी कि अगर आप बात करो किसकी, कि लेट अस दिस पार्टिकुलर रिएक्शन क्या हो जाएगा, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन C से शुरू किया था आपने, ठीक है, C से कॉन्सेंट्रेशन शुरू किया था, तो क्या होगा, C माइनस एक्स गिविंग यू एक्स, या अल्फा लिखो एक्स लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या है ये किस पे डिपेंड करेगा, K पे डिपेंड करता है। K की वैल्यू जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डिग्री आयोनाइजेशन, करेक्ट। K की वैल्यू जितना ज़्यादा उतना आयोनाइजेशन। फिर क्या होगा कि इसको समझिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। जो जितना x है, ये x है, यही x यहाँ पे होगा। अरे भाई, ये आपने इनिशियली इससे लिया था, इससे क्या बना, ये बना, ये फर्दर क्या करता है, आयोनाइज होता है। तो यही तो आयोनाइज हो रहा है, तो यही x आयोनाइज होगा। ये x मान लीजिए आयोनाइज होके क्या बनाया, y बनाया, सिंपल, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो इंपॉर्टेंट ट्रिक समझना, ये जो लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा गया, इसको समझिए कि ये x बना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बन गया। ये जो रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन, ये जो Ka2 है, इस रिएक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये बोलता है कि जो दिस x माइनस वाई और दिस इज y, सो दिस x माइनस वाई कैन बी रिटन एज x। क्यों? क्योंकि x के कंपेयर में, x में से जो y जो रिएक्शन कर रहा है बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो आपका रिएक्शन है ना, ये जो Ka2 है ना, वो काफ़ी कम है। अरे सिंपल है, देख लो ना, एक प्रोटॉन निकाला तो एक नेगेटिव बना, इस नेगेटिव से एक और प्रोटॉन निकाल लेना। 1 रुपये मैंने आपको 100 रुपये दिए, मैं ऑलरेडी -100 में चला गया हूँ, अब फिर से आप मुझसे 100 रुपये मांग रहे हो, तो वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट गिव यू। बहुत मुश्किल है कि मैं आपको 100 रुपये वापस फिर से दूंगा और -200 हो जाऊंगा, ठीक है। तो एक बार 100 बनना इज़ फाइन, गुड, बट फिर से -100 और बनना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेम थिंग इज़ हैपनिंग कि एक बार तो ये रिएक्शन हो गया, बट फिर से ये फर्दर रिएक्शन होना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड ये है, सो दैट्स वाई एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी लेस। यानी कि क्या है, एक्स के कंपेयर में जो ये वाई होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, आपको क्या पता है, ये सब के सब एक ही रिएक्शन वेसल में होंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, यहाँ और यहाँ सेम होगा, तो यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन क्या होगा, x प्लस वाई होना चाहिए। और क्या पता है, x प्लस वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू है जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकेंड रिएक्शन इस तरफ क्या है, बहुत ही कम मात्रा में बढ़ रहा है। y है मतलब क्या, y मतलब अमाउंट ऑफ C2O4 नेगेटिव बहुत ही कम मात्रा में रिएक्शन कर रहा है। सो y जो है, जो रिएक्शन कर रहा है बहुत ही छोटा है, तो ये बहुत ही छोटा होगा, ये बहुत ही छोटा होगा। सो x प्लस वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपको H प्लस पूछ रहा है, अगर अंत में पूछ रहा है कि H प्लस pH पूछता ही है, पता ही है ना, pH तो पूछेगा ही ना भैया, पॉलीप्रोटिक एसिड रहे, टाइप्रोटिक एसिड रहे, डाइप्रोटिक एसिड रहे, तो पूछेगा ही कि pH क्या है। तो pH के लिए आपको सीधा क्या पता करना चाहिए, x पता करना चाहिए, काम खत्म। यानी कि जब आपके पास पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं तो वहाँ पे Ka1 आपका सारा काम कर देता है, ठीक है। Ka1 आपका सारा काम खत्म कर देगा। क्यों? H प्लस आपको चाहिए, pH बता देगा, यही बता देगा। Ka1 है तो क्या है, Ka1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² बाई C माइनस एक्स, दैट्स ऑल, सिंपल। तो यहीं से आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जाने की जरूरत तब होगी जब आपसे इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा, तो आपको y का कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा, तो लिख लेते हैं क्या है। सो Ka2 इज इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस वाई बाई
x माइनस वाई, ठीक है। और हमें क्या पता चला है कि y इंटू इसको अप्रोक्सीमेट करके x लिख सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट करके x लिख सकते हैं, तो ये कट्टम कुट्टी, सो y इज इक्वल टू Ka2। तो क्या हो जाएगा, Ka2 निकल जाएगा। तो आप आराम से Ka2 से इसका कॉन्संट्रेशन लिख सकते हो, इसका कॉन्संट्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या थी कि जब आप पॉलीप्रोटिक एसिड की बात करते हो तो क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, आयोनाइजेशन होता है स्टेप में। ये एक स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ। तो पहला जो आयोनाइजेशन होता है दैट्स फाइन, बीइंग द वीक एसिड, ये क्या है, पार्शियली डिसोसिएट करके ये X बनाया, ये X बनाया। ये बंदा फिर से डिसोसिएट करता है, ये बंदा फिर से आयोनाइज करके आपका H+ आयन बनाता है, ठीक है। पर ये जो दूसरा रिएक्शन है वो काफ़ी आपका, इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है या आप अल्फा बोलिए, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है कि ये ऑलरेडी नेगेटिव बना चुका है, फिर से नेगेटिव बनाना इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर आयन। तो क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये कैसा था, मान लीजिए ये 10 मोल था, 10 में से कितना बना, ये 3 मोल और ये 3 मोल बना। 10 में से 3 रिएक्शन किया तो ये 3 मोल और 3 मोल बना, ठीक है। अब ये यही तो 3 मोल यहाँ आ गया, ये 3 मोल क्या करेगा, रिएक्शन करके मान लीजिए 0.1 मोल ही रिएक्शन करेगा और ये 0.1 बनाएगा और ये 0.1 बनाएगा। तो अब देख लीजिए ना, 3 + 0.1 लिखोगे कैसे कम चलेगा, इससे अच्छा आप 3 लिख दो सीधा, ठीक है। और ये और यहाँ पे देखिए क्या है, 3 - 0.1 है तो अप्रोक्सीमेटली 3 लिख दो। तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, जो दूसरा रिएक्शन है, ये क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अगर वही बात यहाँ पे देख लो, क्या है, ये C-X है, ये X बनेगा, ये X बनेगा, यही X क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यही X वहाँ पे आ जाएगा। तो X में से Y गया, ये Y बना, ये Y बना। और क्या आपको पता चला कि ये जो रिएक्शन है ये Y की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली X लिख सकते हो। सिमिलरली यही Y यहाँ पे आएगा, तो ये Y में से हमारा Z गया, ये Z बना, ये Z बना, ठीक है। ये तो आप समझ लो कि आपको दिखेगा ही नहीं कि रिएक्शन हो भी रहा है। ये तो तीसरा वाला तो ऑल डिफिकल्ट है, जब ये जो है इसका Ka1 इससे बहुत बड़ा है और Ka2 जो है इससे बहुत बड़ा है, तो Ka3 का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। तो इस चीज़ को साथ समझेंगे तो क्या हो जाएगा। और व्हाट इज द कॉन्संट्रेशन H+ आयन, जो X है, Y + X + Y + X+, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली X, ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली Y, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आराम से कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। अगर आपको pH पूछ रहा है, अगर आपसे सिर्फ pH पूछ रहा है तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ से आपको पता होना चाहिए, दैट इज X। यानी कि सिर्फ पहला रिएक्शन ही आपको pH कैलकुलेट करने में हेल्प कर देगा, बाकी रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। हाँ, अगर आपसे ये पूछ दिया कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4-3, तब आपको EZ का कॉन्सेंट्रेशन पता करना पड़ेगा, एंड दैट इज Ka3 इज इक्वल टू क्या होगा, Z इंटू X बाई क्या हो जाएगा बताइए, Y। तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्या, Z + Y + X, तो ये X के बराबर है तो अप्रोक्सीमेटली X है तो मैंने X लिखा, ये Z है और ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली Y है तो Y लिखा, तो Y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, इसकी बातें हो गई। अब जो है हम लास्ट में एक डिस्कस करते हैं, क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड थोड़ा सा छोटे से जगह में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई Ha1 है गिविंग यू H+ आयन एंड A नेगेटिव आयन, A2 है गिविंग यू H+ आयन एंड A2 आयन, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 बाय स्ट्रेंथ ऑफ acid 2 is equal to simple concentration of H+ ion in acid 1 and concentration of H+ ion in acid 2. very simple, very simple. okay, so क्या हो जाएगा बताइए, this is C alpha, this is C alpha 1, C2 alpha 2, C1 alpha 1, and what we know that Ka1, this is Ka1, let's write it K1 and this is K2. okay, so H+ ion concentration क्या हो जाएगा, 1 by H+ ion concentration 2 क्या हो जाएगा बताएंगे क्या, this is equal to C1 alpha 1. so what C1 alpha 1, C1 into under root of क्या होगा, K1 by C1, C2 by under root of K2 by C2,
बीइंग द वीक एसिड वी आर नेग्लेक्टिंग द अल्फा, करेक्ट। वो सारी चीज़ें हैं। के ए आपका अल्फा की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ के बाई सी होता है, तो वही मैं लिखा हूँ अंडर रूट ऑफ के बाई सी होता है इंटू मल्टीप्लाई विथ C1। सो दिस इज कमिंग टू बी क्या हो जाएगा बताइए, K1 C1 बाई K2 C2, और फिर से अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन C1 इज इक्वल टू C2 है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KA1 बाई KA2। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात कर रहे हो तो क्या होता है, जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, जिसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, वो क्या है स्ट्रॉन्ग, आपको उसका स्ट्रेंथ एसिड का ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि Ka वैल्यू आपको डिसाइड करके बताता है कि कौन सा एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मान लीजिए एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का K वैल्यू क्या होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। फॉर्मिक एसिड का जो K वैल्यू होता है एट द रेंज ऑफ 10⁻⁴। तो क्या बोलेंगे किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, गिवन दैट द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स सेम, C1 इज इक्वल टू सेम। तो क्या है, अगर आपको पता करना है एसिड का स्ट्रेंथ क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Ka1 बाई Ka2। तो ये क्या करता है, आपको रिलेशन बताता है कि जिसका K वैल्यू ज़्यादा क्या है, जिसका K सिंपल है ना, H+ इज प्रोपोर्शनल टू K। अगर कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया है तो जिसकी K वैल्यू ज़्यादा उसका क्या है, उसका क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वो ज़्यादा। ठीक, तो जो हमने पीएच के ऑलमोस्ट सारे जो मॉड्यूल्स है सारे चीज़ हमने कर लिया है। आपको जो डीपीपीस या सीट्स दी जाएगी उसमें सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो जो आपको डीपीपीस में जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिख रही है न्यूमेरिकल्स जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, समझ लीजिए वो प्रॉब्लम्स उस टाइप के प्रॉब्लम्स ज़्यादा पूछा। इवन दो मैं आपके इसके भी 1-2 प्रॉब्लम्स बस इसीलिए दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, बट प्लीज़ रिमेंबर जो प्रश्न आपको ज़्यादा दिख रहे हैं समझ लीजिए कि उसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं उस प्रश्न को ज़्यादा सीट में डाला हूँ। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए। लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।